how are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson, the 100 dresses part 1, in which we were reading about that how Maddie and Peggy always used to make fun of, means you can say that Peggy was making fun of Wanda, but Maddie did not stop her. That is also the same thing. ओके मीन्स अगर आप नहीं किसी को रोक रहे हो गलत करने से तो आप भी इसका मतलब गलत ही कर रहे हो. तो दैट ऑल्सो वी हैड रेड दैट कि the competition was there of drawing making drawing competition was there. Girls had to make the dress and the boys had to make the motorbike, and now the day had come when there was the result of the competition, and now they have entered the class. The minute they entered the class, they stopped short and gasped. Gasp means when we are very much surprised, at that time we take a long breath. Okay, there were drawings all over the room, on every ledge and windowsill. Dazzling colors means bright colors and brilliant lavish designs drawn on great sheets of wrapping paper. क्लियर. जैसे ही वो अंदर घुसे तो उन्होंने क्या देखा कि हर एक विंडो सिल, हर लेज पर, हर एक छोटी छोटी जगह पर अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई थी. रैपिंग पेपर के ऊपर पेंटिंग बनाई हुई थी अलग अलग डिज़ाइंस की. ओके, देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. ठीक है, पूरी एक लाइन में ऐसे लाइन में लगी हुई थी. टोटल 100 ड्रेसेस थी. ओके, these must be the drawings for the contest. They were everybody stopped and whistled or murmured admiringly. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो ड्रेसेस हैं वो वाकई जो है कॉन्टेस्ट के लिए ही होंगी, और हर कोई क्या है उसकी प्रेज़ कर रहा था उन ड्रेसेस की, और विस्लिंग भी कर रहा था. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. वाई वर पैगी एंड मैडी सरप्राइज्ड when they entered the room? Why were Peggy and Maddie surprised when they entered the room? Next question. Who was the winner in the boys? What had he drawn? What had he drawn? As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won the boys. ठीक है, बॉयज़ में कौन जीता था? जैक बेगल्स. ठीक है, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room number 12. और उसकी जो ड्रेस थी वो उसकी जो मोटर बोट बनी हुई थी उसकी एग्जीबिशन कौन से रूम में थी? रूम नंबर 12 में. अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़. मीन्स जिन जो बॉयज़ के स्केचेस थे बॉयज़ ने बनाए हुए थे वो सारे कहाँ पे थे? रूम नंबर 12 में. सो राइट वन मोर क्वेश्चन. हु वाज द विनर अमंग द गर्ल्स? अमंग द गर्ल्स इन द कॉन्टेस्ट, एंड वाई? ओके, नाउ as for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her. ठीक है, उन्होंने कहा कि 1 या 2 ड्रेसेस सभी ने भेजी हैं, लेकिन रूम नंबर 13 जो है उनको प्राउड होना चाहिए उसके ऊपर. दिस वन गर्ल एक्चुअली डू 100 डिज़ाइंस. कि एक लड़की ऐसी है जिसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. यानी कि अगर हम एक ड्रेस को भी देखें तो भी वो विनर निकलती है. ठीक है, तो उसने तो 100 ड्रेसेस बनाई है और सारी की सारी इतनी सुंदर. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. कि वांडा पेट्रोंस्की जो है वो इसके विनर है. शी हैड मेड 100 ड्रेसेस. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her.
ओके मतलब कि जो अप्लॉज उसको मिलना चाहिए वो लेने के लिए वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि शी इज़ एब्सेंट फ्रॉम सो मैनी डेज. राइट वन क्वेश्चन हेयर. हाउ डिड द क्लास रिएक्ट when they came to know that Vanda was a winner? How did the class react when they came to know that Vanda was a winner? Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. ठीक है, exquisite means beautiful. तो पूरी क्लास को क्या कहा गया कि आप अपने पूरी क्लास में घूम के उसकी ड्रेसेस को देख सकते हैं. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. Stamp on the floor means making the noise with the foot. Okay. Put their fingers in their mouth and whistle. और बॉयज़ ने जोर जोर से whistling करना है क्योंकि आप बॉयज़ को तो एक बहाना ही चाहिए होता है ना. Though they were not interested in dresses. वो चाहे ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन उनको बहाना मिल गया है कि वो पाँव से जोर जोर से शोर करें और विसल्स बजाएं. Look Peg, whispered Maddie. There is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here is that green one, boy. And I thought I could draw. ठीक है कि शायद मैं भी ड्रॉ कर सकती थी. क्लियर. और ये वो वाली ग्रीन ड्रेस है जो उसने कही थी, ये वो ब्लू ड्रेस है जो उसने कही थी. मीन्स दे वर टॉकिंग अबाउट वांडा ओनली कि ये देखो ये ड्रेस उसने बनाई. ये वाली ड्रेस के बारे में उसने हमें तब बताया था. उस वाली ड्रेस के बारे में भी उसने बताया था कि मेरे पास ग्रीन कलर की ड्रेस है, मेरे पास ब्लू कलर की ड्रेस है. शी यूज्ड टू से. तो इट मीन्स शी वॉज टॉकिंग अबाउट दीज ड्रेसेस विच शी हैड मेड. दैट मच इज़ फॉर टुडे. Your first part of this lesson is completed. We will come soon with the another part. Bye students.